liberty or freedom. Whenever we think of liberty or freedom, now whose liberty, whose freedom are we talking of? तो उसके क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं? उल्टा करते हैं, of a nation. Okay, and we have already taken note of nation. What else? Of a group or of a community, a smaller collectivity, smaller one. Now, smaller in what sense? In comparison with nation. And the most important one, the fundamental one that we are going to especially focus on. तो वो क्या है? Now you must have taken the hint. Individual liberty. Okay, you can even say person, but individual is the right term, right word, let us say. So individual liberty. Okay, this is the first one. Now let us take it forward. What is mean by liberty, freedom? At a very fundamental level, liberty denotes absence of restraints, constraints, obstacles. Can we say this? At a fundamental level. Okay. So what do you demand through liberty of an individual? Basically, you demand that your, now उसमें दो डायमेंशंस आने वाले. योर का मतलब क्या है? क्या इसेंशियली हम बोल रहे हैं कि लिबर्टी ऑफ, सॉरी, टू थिंक एंड टू एक्ट. ओके, सो आप उसको जोड़िए. लेट अस ट्राई टू रिलेट बोथ द स्टेटमेंट्स. नाउ why are we demanding absence of restrictions या restraints या constraints? For what purpose? What is the logic behind that? तो logic ये है, so that अब ब्रैकेट में भी लिखते हैं, you can have free space to think and to act. Okay, I hope this is fine. So liberty denotes absence of restraints या restrictions, constraints, obstacles. Okay. In other words, what are you demanding? You are demanding free space. For what purpose? To think freely. मुझे सोचना है, मुझे सोचने दीजिए. Do not constrain me. Do not hamper my that ability. Okay. To think freely as well as to, अगर खाली इतना ही होगा और ये नहीं होगा तो मतलब ही नहीं है उसका. So we'll demand at least two. That is the both. So think, no doubt about that, and also to act upon that. Okay. अब उसको थोड़ा क्वेश्चन करते हैं. Who is likely to constrain you from thinking freely and acting freely? Where does that constraint come from? What is the source of that? So आपने बोला पहला है गवर्नमेंट. Should I also write state? Yes, we are here talking about Indian state, Pakistani state, Japanese state, not state of Maharashtra. वो तो है उसमें. Okay, so actually मुझे ये पहले लिखना चाहिए because state happens to be the comprehensive concept. So state government सही है. Anything else? सिंपल कीजिए. मुझे कुछ तो करना है, मुझे सोचना भी है और कुछ करना भी है. तो मुझे कौन प्रोहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है? तो उसका पॉसिबल एक आंसर है, डेफिनेटली स्टेट करता है एंड गवर्नमेंट करता है. इज देयर एनीथिंग एल्स? सोसाइटी. यस, एब्सोल्युटली राइट, सोसाइटी. व्हाट एल्स? हाँ, सोसाइटी के तो कितने सुपरस्टिशंस होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, सो एंड सो फोर्थ. कल्चर के नाम पे सब कुछ किया जाता है. इसीलिए एक टर्म है, इथिक्स में भी आएगा, GS2 में आएगा, GS1 में भी आएगा, मॉरल पोलिसिंग.
what to do, what not to do, how to do, so on and so forth. बात यहां तक जाती है कि आपको खाना क्या है और खाना क्या नहीं है, यहां तक स्टेट आती है. ओके, सोसाइटी आती है, स्टेट तो आता है बाद में, लेकिन पहले सोसाइटी आती है. ओके, सो सोसाइटी happens to be another, rather someone would say, argue that नहीं सर उसको यहां से हटाइए, उसको यहां प्लेस कीजिए. नंबर 1 का थ्रेट कहां से आता है? सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? सोसाइटी होता है. ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स? हाँ, लेकिन वो ऊपर आएगा. लॉ भी, यस, एब्सोल्युटली राइट. लेकिन अब मैं लिखूंगा, आपने आंसर दिया है तो, लेकिन कहां जाना चाहिए? वहां जाना चाहिए. ये भी है ना बात. अदर इंडिविजुअल, नॉट मी एज एन इंडिविजुअल, आई एज एन इंडिविजुअल, बट somebody else. अब बोलेंगे कि नहीं वो तो सोसाइटी का हिस्सा है डेफिनेटली है, लेकिन वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एज मेनी सोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस एज पॉसिबल. ये सिंगुलर है, इसलिए हमने यहां उसको इधर लिखा है. कोई बोलेगा कि नहीं सर सोसाइटी तो बहुत लार्ज होती है, उसमें ये भी लिखिए ना, ग्रुप, यानी कि नॉट एंटायर सोसाइटी बट द ग्रुप यू बिलोंग टू, यानी कि मेरा ग्रुप मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल हो सकता है. सो सोसाइटी ऑब्लिक क्या करेंगे, उसको ग्रुप को यहां डालेंगे. दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ओके, नॉट द अदर ग्रुप्स. आप देखिए रिलीजन, आपका एक्स रिलीजन है, वाई से क्या लेना देना है? आपका एक्स रिलीजन आपको बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है. ओके, सो योर रिलीजन मे ऑपरेट एज ए रिस्ट्रिक्टिंग एजेंसी, रिस्ट्रिक्टिंग फोर्स. आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट. नाउ इफ वी sum it up and take it together, and if I ask you a question, बड़ा ही क्वेश्चन मार्क उसको यहां लिखते हैं कि what kind of constraints are these, उसका नेचर क्या है? If I say and write here, खाली सोचते रहिए, we'll look into that. Okay, एक्सटर्नल या फिजिकल, उसके बाद में जाएंगे. How does society seek to do the same thing? Through what instrumentality? तो हमें पता है, मैंने आपको भी पता है, मैंने अभी रेफर किया था कि कल्चर के नाम पे करता है, प्रैक्टिसेस के नाम पे करता है, रूढ़ी परंपरा, सो एंड सो फोर्थ. ओके, ये बहुत बड़ा लीगेसी है, सो एंड सो. सो सोसाइटी आल्सो हैज n number of means to constrain us, to not let us do whatever we want to do. ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, सो एंड सो फोर्थ. सो सोसाइटी के पास तो इतने सारे मीन्स है. अब स्टेट के पास जो मीन्स होते हैं वो फॉर्मल है, उसको हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोर्ट तक लेके जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट भी अगर ऑटोनॉमसली फंक्शन नहीं कर रहा है तो बात बहुत ही आगे बढ़ जाती है, फिर मामला गड़बड़ा जाता है. ओके, सोसाइटी के पास तो फॉर्मल कम लेकिन इनफॉर्मल मीन्स ज्यादा होते हैं. लेकिन कोई कहेगा नहीं, वो सोसाइटी के लिए फॉर्मल ही है क्योंकि सदियों से चलता आ रहा है वो उनके हिसाब से, बट वो फॉर्मल नहीं कहला सकते हैं हम उसको. स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और बाकी जब चीजें हैं होती है तो उसका आधार वो है. सो इनफॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स टू कंस्ट्रेन अस, ओके, प्रिवेंट अस, प्रोहिबिट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स द वे इन विच वी वांट. ये भी हुआ. अब ये भी डेफिनेटली अदर पर्सन, अब अदर पर्सन कैसे करेगा? हाउ वुड एन इंडिविजुअल कंस्ट्रेन अस फ्रॉम डूइंग व्हाटएवर वी वांट? हाँ, तो अगर इसकी बात करते हैं तो वो बोलेगा नहीं नहीं वैसा मत सोच, ये गलत है. तो द अदर पर्सन विल ट्राई टू परसुएड अस, कन्विंस अस, ओके, थ्रू आइडियाज. अब वो अगर नहीं चल रहा है तो यहां पे बात आएगी, तो वो पकड़ के भी रख सकता है हमें, यानी कि फिजिकल ऑब्स्टैकल के फॉर्म में वो भी वो आ सकता है. सो ये जो अदर पर्सन है थ्रू आइडियाज विल ट्राई टू कंस्ट्रेन अस या यू, या फिजिकली एज वेल. उसके पास बल है शायद, पता नहीं, या 4 और लोगों को वो लाएगा और हमें करने ही नहीं देगा वो. ये पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है वो. आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट. अब ये पढ़िए, व्हाट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर दीज? तो मैंने लिखा है एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस है ये. कोई और इज नॉट लेटिंग मी
letting an individual to think freely and act upon the same. तो वो एक्सटर्नल इसलिए है, कोई दूसरी चीज या फोर्स है. कौन है वो? एक है स्टेट थ्रू इट्स ओन इंस्ट्रूमेंटैलिटी, दूसरा है सोसाइटी या उसका हायरार्की बदलते हैं, पहला सोसाइटी, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा है द अदर इंडिविजुअल. सो द कंस्ट्रेंट्स आर not coming from within internally. Now her answer is very important now, but the constraints are coming from outside. Okay, external इसीलिए लिखा है हमने कि स्टेट आपको करने नहीं दे रहा है, सोसाइटी आपको करनी नहीं दे रही, और अदर इंसान या इंडिविजुअल पर्सन वो भी आपको करने नहीं दे रहा है. Am I right? Now get back to the very first sentence. If liberty demands free space, अब ये इस्तेमाल करेंगे. If it opposes restrictions, constraints and obstacles, and if liberty demands या is all about free space. Free space मराठीमध्ये जरा अवघड वाटेल, मुक्त अवकाश असं म्हणतात त्याला. म्हणजे ओके, टू थिंक फ्रीली अँड ऍक्ट अपॉन फ्रीली. सो इफ लिबर्टी डिनोट्स फ्री स्पेस, then what is preventing you from having that free space? तो आप आंसर दे सकते हैं स्टेट, सोसाइटी एंड द अदर इंसान, अदर इंडिविजुअल. अगेन वी आर सेइंग द सेम थिंग. द obstacles that we are identifying, the restrictions that we are identifying, and the source of all these restrictions are external. Okay, now let me ask a question. Is there any other source of restrictions? Other का मतलब अभी not external, तो फिर अब क्या लिखना पड़ेगा मुझे? एक्सटर्नल की तो बात हुई, अब यहां क्या लिखना चाहिए? सी हैड ऑलरेडी आंसर दैट. इंटरनल. इंटरनल का मतलब नीदर स्टेट नॉर सोसाइटी nor any other person is restraining you, but rather yourself happen to be the source of constraint. अब नीट का पेपर क्या हुआ उसका पता है, किसी ने आपको बोला, अब आपका तो चला गया है बिकॉज यू हैव चोजन सिविल सर्विसेज एज ए करियर ऑप्शन. तो किसी ने बोला कि नहीं मेरे पास पेपर है, बाकी का मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ये. ओके, तो फिर डिलेमा आएगा कि क्या करूं मैं. शुड आई पे समथिंग एंड देन हैव एक्सेस टू दैट, और नो, आई सी राइटली पॉइंटेड आउट, नो, आई हैव माई ओन इथिक, morality, and I am going to stick to that irrespective of the consequences. Okay, so this is one option. The other option है, अगर मैं ले लूंगा दूसरे ले लेंगे, उसमें क्या है, तो मैं ले लेता हूं, कोई भी करके मैं ले लेता हूं. That is another option. Okay, so that is also one of the alternatives. अब यहां the source of restrictions is not somebody else, but rather yourself. आपको चूज करना है, ये करना है नहीं करना है. And Gandhi, while putting forward his idea of Swaraj, okay, was very clear about the two dimensions of the notion of Swaraj. And all of you are very well aware of that, क्योंकि फिफ्थ से कम हम पढ़ते आ रहे. तो what are those two dimensions that Gandhi identified of Swaraj? स्वराज, सेल्फ रूल, इंग्लिश वर्ड है वो, सेल्फ रूल, लेकिन टू डायमेंशन है उसके. क्या डायमेंशन या टू लेवल्स बोलिए उसको. पहला तो हम सबको पता है, रूल ऑफ इंडियन पीपल, रूल ऑफ आवर ओन पीपल, नॉट फॉरेन कॉलोनियल पीपल. वी वांट आवर ओन रूल. वो तो बहुत ही एक्सप्लिसिट मीनिंग है स्वराज का, फ्रीडम का, इंडिपेंडेंस का. एम आई राइट? व्हाट इज द अदर डायमेंशन दैट गांधी वाज इंसिस्टेंट अपॉन, वो बहुत ही जोर देते थे उस पर, एम्फसाइज देते थे. व्हाट इज दैट सेकंड डायमेंशन ऑफ गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज? शुड आई
अब आप हंसोगे, आपने पढ़ा था कभी उसको? सिंपल सी भाषा में, आई डू नॉट रिक्वायर अ ट्रैफिक पुलिस, सिग्नल इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी. दैट्स अ वेरी जेनरिक एग्जांपल. Okay, signal is sufficient for me. I do not want the traffic police there. I would not require that because I happen to be a law-abiding individual citizen. अलग अलग सिंपल वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो. सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन. किती वेळा तुम्ही हे वाचला असेल? एमपीएससी ने पॉलिटिकल साइंस में पहले ही मेंस में इस पे सवाल है. ये जीएस में भी आ सकता है. अब एक बेसिक सवाल, why do we need liberty? Why do we need free space? ये फंडामेंटल सवाल हो सकता है ना. तो how would you answer that? Why do we need liberty? Can't we live a dignified life without liberty, without freedom? तो आप बोलेंगे सर सोचने की भी जरूरत नहीं है, इतना वो एक्सप्लिसिट है. लेकिन वो मुझे बताइए क्या एक्सप्लिसिट है वो? जस्ट टू क्रॉस चेक, जस्ट टू कंफर्म द अंडरस्टैंडिंग. क्यों लिबर्टी चाहिए आपको? टू डेवलप. हाँ, दैट इज द मोस्ट व्हाट फंडामेंटल आंसर. टू डेवलप आवर सेल्फ, ये भी चलेगा. डेवलप आवर पर्सनैलिटी, डेवलप आवर इंडिविजुअलिटी, एंड डेवलप द वे इन विच यू वांट, यू एज एन इंडिविजुअल वांट. इसीलिए तो देखिए, डेवलपमेंट का मेरा आइडिया अलग है, कैसे वो करना है मैं तय करूंगा. आई मस्ट हैव द चॉइस. आई होप यू गॉट इट. ओके, अब यहां तक हम आए हैं. नाउ देर इज एन अजम्पशन बिहाइंड दिस डिमांड इन द फॉर्म ऑफ लिबर्टी एज फ्री स्पेस. व्हाट इज दैट assumption? There is something which is assumed here. So let me make it very simple. Focus on individual. That is, we are talking about liberty of an individual. And as an individual, we are saying we do not want restrictions. We do not want constraints, obstacles. I want free space. I hope you got it. This is my argument. What? So I am assuming something here. What is the assumption? हाँ, दो चीजें आपने दोनों ने बताई मुझे. that is very important. क्या था वो? born free. Absolutely right. दूसरा, right to develop freely. ठीक है ना? Absolutely right. Okay. उसका मतलब है it doesn't matter which society you come from, which language you speak, the religion you subscribe to, the race you belong to, whether you are literate, illiterate, educated, uneducated, nothing matters. Gender doesn't matter, so on and so forth. बढ़ा दीजिए उसको. Nothing matters. Only one thing matters, that you have to born on this planet as a what? Born free as what? Human being. ये तो बहुत ही क्लियर है ना. Born free as human being. This is the assumption. हम ये assume करते कि देखिए मैं human being हूं, और all human being irrespective of anything, nation, class, educational background, race, religion, language, doesn't matter. So the assumption is that all humans, each one of us is born free. अगर हमारी पैदाइश ही फ्रीली हुई है, तो what right does society get? What right does state government get? To constrain us. हम उसको बार बार याद दिलाएंगे कि do not constrain me, do not impose obstacles on me, because after all I am a human being. I hope you got it. So that is a very important assumption. और ये जो दूसरा आपने बताया ना कि उसी से आता है वो, कि if I am born free, then I have every right. And here the right is not the right which is given to me by constitution, is not the right which is given to me by my state.
or by my society. But this is a right which I got the moment I am born as a human being. ये अलग राइट की भाषा है ना. दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिस इज नॉट अ लीगल राइट. आई होप यू गॉट इट. नॉट द राइट विच इज ग्रांटेड टू मी बाय सोसाइटी, बट दिस इज अ राइट which is inseparable and inbuilt within me, because after all I happen to be a human being. But again, there is something else as an assumption that I am looking for. What is that? ये एक तो assumption बिल्कुल सही है, और कुछ assumption है उसके पीछे. There is some other assumption. Let me answer that. All of you know that. All of you know that. ये पहला हुआ, ये दूसरा है. Can we say this? Can we say this? The claim of being a capable insan, the claim of being a capable individual, capable person, is this an assumption? है या नहीं है बताइए. If you are not convinced, say so. We can clarify that. Is this the assumption? Does that constitute as another fundamental assumption? So what if a person is handicapped? Exactly. Okay. So अब यहां इसीलिए क्वेश्चन आएगा कि इफ वी से एन इंडिविजुअल बीइंग अ केपेबल या एबल इंडिविजुअल, देन व्हाट इज मीन बाय केपेबिलिटी, व्हाट इज मीन बाय एबिलिटी. ओके, सो आर वी हियर रेफरिंग टू फिजिकल एबिलिटी या मच मोर देन दैट? आपको सवाल का आंसर भी मिला, सॉरी क्वेश्चन का आंसर भी मिला, सवाल का जवाब भी मिला आपको. सो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फिजिकल एबिलिटी या फिजिकल डिसेबिलिटी, वो भी हो सकता है ना. यानी कि वी आर इमेजिनिंग ऑफ एब्सेंस ऑफ समथिंग, वी आर इमेजिनिंग हियर एब्सेंस ऑफ डिसेबिलिटी. आई होप यू गॉट इट. ओके, सो एंड योर पॉइंट इज वेरी पर्टिनेंट, विल गेट बैक टू दैट, क्योंकि वहां जाने वाले हैं. सो आई एम अ केपेबल पर्सन. इंडिविजुअल हैपन्स टू बी an able, a capable entity of the society, member of the society. Okay, अब ये आसान होगा. Since I am a capable person, I require free space. है ना, सिंपल है ना वो. I am a capable इंसान. I do not require guidance of anybody else. हाँ, I will talk to you. I'll consult with you. Okay. बाद में करना क्या है, नहीं करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं खुद तय करूंगा. आई होप यू गॉट इट. ऐसा तो नहीं कि हम जंगल में रह रहे. वी आर पार्ट ऑफ अ कलेक्टिविटी, वी आर पार्ट ऑफ अ सोसाइटी. सो वी आर गोइंग टू हैव रिलेशनशिप विद अदर्स, विल टॉक टू अदर्स. ओके, विल मेक इट अ पॉइंट टू टॉक टू अदर्स, बट अल्टीमेटली you should have that free space to decide what to do and what not to do. I hope you got it. And ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में. ओके, लिबर्टी कैन ओनली बी इमेजिन्ड इफ यू हैव दिस अजम्पशन. उसको बोला गया है असर्शन, बोला गया है क्लेम, बोला गया है. क्या असर्शन है यहां पे? इंडिविजुअल इज असर्टिंग, क्लेमिंग that look, I am a capable insan, I am a capable being, so therefore do not constrain me, do not restrict me, do not impose obstacles, let me have and enjoy free space. I hope you got it. Okay, now यानी कि this is the assumption of being capable. अगर आप capable हो तो डिमांड क्या करोगे? स्टेट को क्या कहोगे आप? Let me do things the way in which I want. सोसाइटी को क्या कहोगे आप? Do not constrain me every now and then. Mind your own business. I am able to do things. And so would you say to another insan, another individual, another person. I hope you got it.
Okay, so this assumption of capability in possession of ability, in possession of capability is fundamental to the concept of liberty. Okay, now the last thing to take it to the logical conclusion. Now what ability are we talking of here? अब इसलिए उनका सवाल बीच में लाते हैं, what if an individual is not capable? ओके, तो आप मुझे आंसर बताइए उसका. What if an individual is not capable? What is mean by that? तो एक आंसर उन्होंने दिया है, फिजिकली चैलेंज्ड. ओके, तो फिजिकली डिसेबल है वो. एनीथिंग एल्स? वो भी उसमें डालते हैं, मेंटली भी उसमें डालते हैं, फिजिकली भी डालते हैं उसको, फिजिकल डिसेबिलिटी. बराबर है. और कोई डिसेबिलिटी हो सकती है क्या? इंटरनल की बात कर रहे हैं आप, यानी कि आई एज एन इंडिविजुअल डू नॉट possess that ability to think rationally. Okay, think rationally, keep aside emotions and sentiments and take decisions सोच समझ के, सिंपल सी भाषा में रिफ्लेक्टिवली जिसको बोला जाता है कि नहीं क्या सिचुएशन है, ये XYZ सिचुएशन है, लेट मी थिंक अबाउट दैट. व्हाट इफ आई गो फॉर अल्टरनेटिव ए, व्हाट वुड हैपन? नो, लेट अस थिंक अबाउट बी. नो, लेट अस थिंक अबाउट सी. सो टू बी एबल टू थिंक इन दैट मैनर, compare various alternatives and then ultimately settle with option कोई भी होगा वो, and then follow through it. तो उसको सेंटिमेंटली आपने डिसीजन लिया ऐसा कह सकते हैं कि हम? बिल्कुल नहीं. हाँ, आपका जजमेंट गलत हो सकता है, लेकिन यू डिड नॉट टेक डिसीजन सेंटिमेंटली, यू डिड नॉट टेक डिसीजन इमोशनली, स्पर ऑफ द मोमेंट बोलते हैं ना, वैसे नहीं किया मैंने. आई टुक टाइम, आई थॉट थ्रू, I thought about every possible dimension of the alternative course of action and उसके consequence क्या हो सकते हैं, and then I took a decision. तो हाँ, ये हो भी सकता है. अगर ये है तो कैपेबिलिटी है, अगर ये नहीं है तो कैपेबिलिटी नहीं है. तो दो आंसर्स हमें मिले हैं. पहला है फिजिकल डिसेबिलिटी, दूसरा है क्या कहेंगे उसको, इंटरनल एबिलिटी. कि जो गांधी एक्सपेक्ट कर रहे थे हम सबसे कि इंटरनली भी आप फिट होने चाहिए, सिंपल सी भाषा में, टू बी एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ. रूल ओवर सेल्फ बोला है, रूल ओवर सेल्फ, इंटरनल कैपेसिटी की. हाँ, एक सिंपल सी भाषा में क्या कह सकते हैं उसको, इंटरनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए. कैन वी से दैट? इंटरनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए. मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है. दूसरा, बट देन देयर इज थर्ड वन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू आर not telling me. Physical disability, fine. In lack of internal strength, that is also absolutely. What else? What remains? वो इंटरनल में आएगा, इंटरनल में आएगा. डेफिनेटली उसको डालते हैं, अभी तो फिलहाल उसमें डालते हैं उसको, उसी में डालते हैं उसको. यस, उसी में डालते हैं उसको. हाँ, ये कितना बड़ा है. और उसको क्यों इकोनॉमिकली कहेंगे? खाली हम सोशो इकोनॉमिकली बोलिए. आप क्या भूल रहे? देखिए, आपने फिजिकल डिसेबिलिटी बोला मुझे, आपने उसके आगे जाके बोला कि नहीं इंटरनल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, यानी कि मेरा मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, मैं मेंटली वीक हूं. आई होप यू गॉट इट. दैट इज ऑल्सो राइट. बट तीसरा हम कैसे भूल सकते हैं? सोशो इकोनॉमिक डिसेबिलिटी. व्हाट इज मीन बाय सोशो इकोनॉमिक डिसेबिलिटी? We are all part of that. Our society and society across the world are known for that. Socioeconomic disability. Okay. So let me get back to the point. If a person is not capable, physically not capable, mentally not capable, वो internal strength का reference है, and socio-economically not capable. I hope you got the argument. तो सोशियो इकोनॉमिकली केपेबल नहीं का मतलब क्या है, मुझे बताइए थोड़ा सा. व्हाट इज मीन बाय एन इंडिविजुअल नॉट बीइंग सोशियो इकोनॉमिकली केपेबल? Not having enough resources. Enough resources, right?
और अब क्या रिसोर्सेस बात कर रहे हैं, किस रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं हम, व्हाट रिसोर्सेस आर वी टॉकिंग ऑफ? नहीं, फिजियोलॉजिकल को थोड़ा हटाते हैं क्योंकि उसमें वो फिजिकल भी आ रहा है ना, वो इट इज दो पर्टिनेंट, विल गेट बैक टू दैट लेटर. यस, फाइनेंशियल, यस उन्होंने बोला ना, हाँ फाइनेंशियल एक उसका आंसर हो सकता है, लेकिन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक वन, सोशल कल्चरल अनदर. जब हम पुणे आते हैं तो पुणे को कहा जाता है कल्चरल कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. अब मराठी बोलते हो तो आय स्टील रिमेंबर माय कॉलेज डेज, तोंड उघडण्याचं धाडस व्हायचं नाही म्हणजे, कारण सगळे एकदम शुद्ध बोलायचे. म्हणजे आम्हाला तर सुरुवातीला न आणि न मधला फरकच कळायचा नाही. म्हणजे दिस इज हाउ कास्ट सिस्टम ऑपरेट्स इन आवर सोसाइटी. और विमेन का तो इतना डीप रूटेड है वो, विमेन के लिए द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विमेन गर्ल्स फेस इन आवर सोसाइटी. तो वो सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है ना, वो भी क्या नहीं है. माइनॉरिटीज, बोथ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. अब ये सोशियो इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज है, डिसेबिलिटीज की बात कर रहे हैं हम. ओके, सो उसके स्ट्रक्चर्स देखिए क्या क्या है. कास्ट इज द स्ट्रक्चर, जेंडर इज द स्ट्रक्चर, class is the structure. Look at these structures which operate as structures of disability for those sections. Okay, Dalits were been exploited due to the caste system. Look at the untouchability. I hope you got it. तो अब देखिए हम कंक्लूड करते हैं. If liberty as demand for free space assumes capability of an individual, then we will have to cross check whether sahi mein each one of us possesses that ability या capability. Are we mentally fit? पूछना ही चाहिए, no doubt about that. Okay, are we physically fit? वो भी पूछना चाहिए और देखना भी चाहिए. But we should never forget about raising a question and cross checking. Is each one of us socio-economically capable? Therefore, our constitution adopted a constitutional scheme of reservation. Constitution में प्रावधान किया है for scheduled caste and scheduled tribe to begin with. It was extended to OBC. Then through 73rd, 74th amendment, at least at the local bodies, women were also extended the policy of reservation. I hope this is more than sufficient. इसीलिए अब जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस टाइप की लिबर्टी या फ्रीडम की आप चर्चा करोगे ना, तो हमें यह सब ध्यान में रखना पड़ेगा कि नो डाउट फ्रीडम या लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्स्टैकल्स. इन अदर वर्ड्स, इट इज फ्री स्पेस. बट हु इज लाइकली टू कंस्ट्रेन माई स्पेस? सोसाइटी, स्टेट, अदर इंडिविजुअल. बट द कंस्ट्रेंट्स दैट वी जस्ट रेफर टू, these are external constraints. What about the internal constraint that Gandhi thought of as the second dimension of Swaraj? And then we ultimately looked into the last dimension of liberty, that is the assumption. And what is that assumption? Liberty as demand of free space assumes that each one of us, being born free, is in possession of every right, that is a natural right to develop his, her personality, is in possession of a capacity, a capability and ability. But हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि कैपेबिलिटी का मतलब क्या है, नंबर एक, और दो, सभी वो पजेस करते हैं या नहीं करते हैं. और वेस्ट से ज्यादा हमारी जैसी सोसाइटी है, नॉन वेस्टर्न सोसाइटी ब्रॉडली हम कहते हैं, एशियन सोसाइटी, तो उस सोसाइटी में ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट, ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ जेंडर, ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ क्लास, and so many other structures, religion also operate as another structure of exploitation and discrimination. We have to look into whether these structures go against this strength that we expect from each and every individual. In position of each and every individual. I hope this is more than sufficient.
थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा शायद आपको, बट कीप थिंकिंग अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट बैक टू दिस अगेन एंड अगेन, सो डोंट वरी अबाउट दैट. अब ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है. ओके